Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today the topic of discussion is biotechnology and emphasis on the genetic engineering. Now what is genetic engineering? Genetic engineering is a process that uses laboratory based technologies to alter the DNA of an organism. This may involve changing a single base pair, deleting a region of DNA, or adding a new segment of DNA. Now what happens in genetic engineering? Genetic engineering, it is also called recombinant DNA technology, and it involves artificial synthesis, modification, removal, addition or repair of genetic material which is naturally is a DNA, which is deoxyribonucleic acid. और ये टेक्निक डेवलप हुई थी इन मिड 1970s and it solved most of the problems of today's era. Now it become possible to cut a DNA and to transfer a particular piece of DNA from one organism into another organism. And the most probable host हम genetic engineering के टूल के तौर पर यूज़ करते हैं, that is the bacterium. और हम इसके अंदर कोई DNA को इंट्रोड्यूस कराते हैं, and when we get the bacterial culture, when we get the bacterial multiple copies of bacteria, and naturally consequently we obtain the millions of copies of specific DNA inside a bacterial cell. Now let's, what are the objectives of DNA? Naturally objectives क्या हैं? जीन थेरेपी है इसमें. जीन थेरेपी इज़ आइसोलेशन ऑफ जीन और अ पार्ट ऑफ अ जीन for the various processes, जिसके लिए जीन थेरेपी and the production of particular RNA and protein molecules. Your all characters are actually the protein. उसके प्रोडक्शन में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम एज ए टूल यूज़ करते हैं. एंड दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑल्सो इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, ड्रग्स एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स. बहुत सारे इसको हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को एज ए टूल यूज़ करते हुए हम सिंथेसाइज कर सकते हैं. नाउ प्रोडक्शन ऑफ वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैविंग पर्टिकुलर डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स. आपको सीडलेस वैरायटी चाहिए, आपको सीजनल वेरिएशंस से अबव वैराइटीज़ चाहिए, हमें ज़्यादा यील्ड चाहिए. दिस ऑल पॉसिबल ड्यू टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग. एंड इन हायर ऑर्गेनिजम्स मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिफेक्ट्स दे आर नाउ ट्रीटेड ईजिली. नाउ व्हाट इज़ द, let's have a look what happens during genetic engineering. In genetic engineering, we cut a DNA, we introduce a new set of DNA. It is one of the principle of biotechnology. As you know, DNA is a hereditary material, but genetic engineering, it has that बायोटेक्नोलॉजी हैज़ टू टूल्स. वन इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसकी बेस पे हम बहुत सारे केमिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं, विच इज़ द बेस ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग. नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट डील्स विद द मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. Modification and manipulation is, as you know, DNA is a hereditary material, but in some cases RNA is the hereditary material. Not all organisms have DNA as a hereditary material. For example, in some viruses RNA is the genetic material. और इसी इंफॉर्मेशन की बेस पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बेस पे, हम फिर बहुत सारे केमिकल्स को हम कंटेमिनेशन फ्री जोन में सिंथेसाइज करते हैं, विच इज़ द called come under the umbrella of chemical engineering. So it revolves around the use of chemical for the growth and maintenance of cell culture. हम सेल कल्चर को क्या करते हैं, बहुत से बल्क अमाउंट में हम माइक्रोबियल कल्चर को बनाते हैं इन कंटेमिनेशन फ्री. कंटेमिनेशन मींस इम्प्योरिटी फ्री जोन में, जहाँ पर इम्प्योरिटीज़ नहीं हैं. और ये प्रोसेस हम बहुत सारे वैक्सीन्स बनाने में, एंटीबायोटिक्स और एंजाइम्स बनाने में हम इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, these two are actually the principles of biotechnology. Now let's discuss द जेनेटिक इंजीनियरिंग. हम इसमें होता क्या है, इसमें क्या है, हम डीएनए में, अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को टूल को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स विद डिज़ायरेबल कैरेक्टर. अब इसमें क्या करेंगे, हम डिज़ायर्ड जीन्स को इंट्रोड्यूस करा के एक नया सेट बना सकते हैं, या हम अनवांटेड जीन्स को कट करके हम एक नया जीन्स बना सकते हैं. नाउ दीज रिकॉम्बिनेशंस, दे आर नाउ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए. These recombinant DNA means the DNA with a changes, either the deletion, either the addition. So these recombinant DNA is the base of genetic engineering.
अब अगर फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स में इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिज्म विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉल्ड जीएमओज। अब ये प्लांट्स में भी हो सकता है, बहुत सारे एनिमल्स में भी हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग को। मोस्ट स्पेसिफिकली अगर हम बताएं कि हम प्लांट्स में किस किस तरह के जेनेटिक मटेरियल्स को या जेनेटिक मेकअप को हम ऑल्टर कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो दी जेनेटिकली मॉडिफाइड हम ऑर्गेनिज्म में हम रोबस्ट क्रॉप्स को यूज़ किए बनाने में, पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटीज़ बनाने में या हाई यील्ड वैरायटीज़ बनाने में हम इन जीएमओज़ को यूज़ कर सकते हैं। दी जीएमओज़ आर द genetically modified organism. Now what happens in the genetic engineering? We have desired genes and we get the multiple copies of these genes and this process is called gene cloning. एक जीन की हम डुप्लीकेट जीन के एक प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एग्जैक्ट डुप्लीकेट क्या है कि आपके पास एक चीज़ की आप मल्टीपल कॉपीज़ हों और इसको बल्क अमाउंट में हम इसको यूज़ कर सकें। दिस इज़ कॉल्ड जीन क्लोनिंग। सो हम क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम मॉडिफाइड जीन की जीन क्लोनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाउ दीज जीन क्लोनिंग हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। Now let's move on. So this is all about the biotechnology. Now let's move on. What are the basic steps involved in the genetic engineering? So for the basic steps, now first of all look in the how these genes are. अच्छा, प्लाज्मिड का होना एक रेवोल्यूशन था इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम क्या करेंगे, डोनर से हम एक जीन्स लेते हैं, उसको हम कट करते हैं, उसके बाद उसको प्लाज्मिड में ऐड करते हैं। प्लाज्मिड में भी हमें जितने सीक्वेंस को अपने काटना होता है वहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालते हैं विच इज़ कॉल्ड डीएनए कटर। आप देखिए, आप देख रहे हैं कि डीएनए कट हुआ, इसके जो दोनों एंड्स हैं वो बहुत स्टिकी होते हैं और यहाँ पर हम फिर वो पार्ट को ऐड करते हैं जो हमने होस्ट से लिया था और उसके बाद जो एंजाइम डालते हैं विच इज़ कॉल्ड डीएनए लाइगेज एंजाइम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डीएनए ग्लू। सो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो डीएनए आ गया है दिस इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम दोबारा से होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक। अब देखिए यहाँ पर ये है इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग का हम एग्जांपल लेते हैं कि इंसुलिन को हम सिंथेसाइज करते हैं। क्या हुआ, हमने ह्यूमन सेल से, ह्यूमन सेल इज़ द डोनर, यहाँ से हमने पूरे डीएनए के सीक्वेंस में डीएनए के मेकअप से हमने कौन से क्रोमोसोम्स को कट किया जो इंसुलिन सिंथेसिस में हेल्प करता था और हमने बैक्टीरियम को एज ए वेक्टर यूज़ किया। वेक्टर मींस व्हीकल, जिससे हम प्लाज्मिड लेते हैं और प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स हैं बैक्टीरिया में। हम उसको आइसोलेट करेंगे, उसको हम कट करेंगे और उस कट में हम आपकी येलो देख रहे हैं डीएनए येलो जीन, दिस इज़ कॉल्ड। और जब हमने इसको कट करना है तो हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम डालना है विच इज़ कॉल्ड डीएनए कटर। और डीएनए ग्लू क्या है, विच इज़ द लाइगेज एंजाइम। जब हमने इंसुलिन जो जीन ऑफ आइसोलेटेड जीन व्हेन वी इंसर्ट इनटू द प्लाज्मिड, हम कौन सा एंजाइम ऐड करेंगे विच इज़ कॉल्ड लाइगेज एंजाइम। अब आप देखें इस प्लाज्मिड को हम दोबारा से बैक्टीरिया में एंटर करते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। अब आप ये देखें जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। अब आपके इस प्लाज्मिड में आपको येलो कलर का जो प्लाज्मिड नज़र आ रहा है जिसमें येलो पैच है, इट इंडिकेट्स कि आप इसके पास इंसुलिन बनाने का डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है फॉर इंसुलिन सिंथेसिस। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करेगा वैसे ही हमारे पास इंसुलिन की मल्टीपल कॉपीज़ आ जाएंगी और एट दी एंड क्या होगा, हम हर एक में से इंसुलिन को आइसोलेट करके, अब इंसुलिन हमारे पास टैबलेट्स की फॉर्म में, इसके हम इंजेक्शंस की फॉर्म में बल्क अमाउंट में अवेलेबल हैं। नाउ लेट्स मूव, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व। पहला क्या है जी हमारे पास,
आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो पहले सबसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें डोनर ऑर्गेनिज्म से किसको, कौन से जीन्स को हमने कट करना है। सो एट दैट टाइम वी ऐड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स टू कट द डीएनए। याद रहे कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज़ द डीएनए कटर। So we cut the identified gene from the total DNA of donor. So donor in case of insulin कौन है? Human being, because human being में pancreas में ये synthesize होते हैं। नाउ अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसी जो पर्टिकुलर हमने जीन्स को आइसोलेट किया था उसको अब हम इंसर्ट करेंगे इनटू द वेक्टर। और वेक्टर या व्हीकल यहाँ पर क्या है? बैक्टीरिया का प्लाज्मिड रिंग। So a bacteria is selected, a vector is selected for the bacteria as a vector is selected for the transfer of isolated gene of interest to the host cell. This vector may be a plasmid, which is the extra chromosomal ring in many bacteria, और bacteriophage भी हो सकता है. The gene of interest is attached with the vector of DNA by using endonucleases, which is called the breaking enzyme, and ligase, which is called the joining enzyme. The vector of DNA अटैच टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इस स्टेज पर हम उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम टारगेट होस्ट में डालेंगे। होस्ट कौन है? बैक्टीरिया। सो इन दिस वे होस्ट ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसफर इनटू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म विच इज़ नाउ कॉल्ड जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम एक कल्चर मीडियम देंगे फॉर ग्रोथ एंड वी गेट द मल्टीपल कॉपीज ऑफ genes, and the GMO contains the gene of interest and manufacture the desired product which is isolated from the culture medium. So this is all about नाउ लेट्स मूव ऑन कि अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे पास कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लाइक हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, दे आर ट्रीटेड ड्यू टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग. नाउ इट बिकम पॉसिबल टू मॉडिफाई द जीन्स इन ह्यूमन एग सेल. सो दिस कैन लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ हेरिटेबल प्रॉब्लम्स दैट आर फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया. हीमोफीलिया में क्या है? ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसके में प्लेटलेट्स ना होने के बराबर है कि इवन अ स्मॉल कट देन लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन. इसी तरह बहुत सारे ब्लड प्रॉब्लम्स लाइक थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, इन डिफेक्ट्स की भी हम जीन्स थेरेपी करके हम बोन मैरो के ट्रांसफ़र में बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इसको भी इरेडिकेट कर सकते हैं. नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑल्सो डेवलप द प्लांट दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. अब यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइज़र की नीड को ख़त्म करने के लिए हम ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. इस तरह बहुत सारे हार्मोन्स हैं दैट थाइमोसिन which are used in the brain and lung cancer. They also produced through genetic engineering technology. Beta endorphins, which are the strong painkiller after surgery in the acute pain, हम बीटा एंडोर्फिन्स को यूज़ करते हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम बना सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे वैक्सीन्स हैं विच आर यूज फॉर फुट एंड माउथ डिजीज़ एंड एंटीवायरल डिजीज़ लाइक कैटल, गोट्स एंड डियर. इन सब के ट्रीटमेंट में बहुत सारी वैक्सीन्स विच आर यूज फॉर हेपेटाइटिस बी, दे ऑल आर प्रोड्यूस ड्यू टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग. interferons which are antiviral protein, they are also produced through genetic engineering. और interferons को हम एड्स की ट्रीटमेंट के लिए, इनिशियल स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट हो जाए उसके ट्रीटमेंट के लिए, हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए हम इंटरफेरॉन्स के इंजेक्शंस को यूज़ करते हैं. इन 1980 इंटरफेरॉन वाज फर्स्ट प्रोड्यूस इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. और उसके बाद से मेडिकल साइंस में एक रेवोल्यूशन आ गया. द एंजाइम यूरोकाइनेज, यूरोकाइनेज को हम ब्लड थिनर भी कहते हैं. सो दिस ब्लड थिनर दिस डिजॉल्व द ब्लड क्लॉट्स, दे ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. So as you can see hemophilia, thalassemia, sickle cell anemia, urokinase, interferon, so many problems, they are now treated well with the genetic engineering tool. Now let's move on the next topic, which is a single cell protein. Or single cell protein name indicate the formation of a protein culture from the microorganisms. So single cell protein is a protein derived from the microorganism like algae, bacteria, fungi and yeast, which can be used as a food supplement for humans and animals. आजकल जो ड्राइड प्रोडक्ट आपको बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, they all are called single cell protein.
This is the high protein source, and it also contains vitamins and lipids. So this is not only a process, it is actually the revolution. अब क्या हम करते हैं, हम वेस्ट सबस्ट्रेट्स को यूज़ करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। हम उन वेस्ट को यूज़ करके उसको फर्मेंटेशन में उसकी फर्मेंटेशन करते हैं। जब वो उसका हमारे पास बल्क अमाउंट आ जाता है, देन रीफिल्टर एंड प्योरीफाई द कल्चर, ड्राई करते हैं, और उसके पास हमारे पास रिच कल्चर ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन आ जाता है, क्योंकि इसकी बेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सिंगल सेल. Now, in genetic engineering, we have studied about the transformation of many microorganisms by the introduction of genes of beneficial protein in, for example, insulin. Now, single cell protein refers the protein content extracted from pure or mixed culture of algae, yeast, fungi or bacteria. So for the production of single cell, the microorganisms are grown in fermenter. आपने fermenter से पहले लेक्चर्स में देख लिया है कि fermenters क्या हैं, जिसमें हम बल्क अमाउंट में किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम बल्क अमाउंट में चाहिए तो हम इसको फर्मेंटर्स में ग्रो करते हैं. सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे यूटिलाइज वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट. अब सबस्ट्रेट्स कौन से हैं? एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, नेचुरल गैस लाइक मीथेन. अब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं एंड वी गेट द हाई यील्ड ऑफ प्रोटीन. द प्रोटीन कंटेंट प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड नोवल प्रोटीन और मिनी फूड. नोवल प्रोटीन मीन्स न्यू प्रोटीन. सो ऐसा प्रोटीन जो अवेलेबल नहीं था, लेकिन हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स. अब क्या है, इस सिंगल सेल प्रोटीन की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई? बिकॉज फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, और जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. Now, due to the overpopulation, the world is facing the problem of food shortage. Now, conventional agriculture methods, they are not able to provide the sufficient food. अब क्या हो गया? अब ह्यूमन की और अदर ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की, हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को एज ए प्रोड्यूसर यूज़ करके एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको हमने यूज़ किया, और बहुत सारे फूड की प्रोटीन रिच फूड हमने मार्केट में ना अवेलेबल हम बना चुके हैं. इस टेक्निक को सबसे पहले प्रोफेसर श्रीम शॉ, जो कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको और बहुत सारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने प्रोटीन रिच फूड अवेलेबल किया फॉर ह्यूमन एंड एनिमल फीड्स. अब आप इसकी अमाउंट देखें कि ऑल साइंटिस्ट रिकग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन. बिकॉज अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है सिंगल सेल प्रोटीन के, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो वेरी विगरसली एंड प्रोड्यूस हाई यील्ड. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, और इसकी यील्ड का अंदाज़ा आप लगाएं कि 50 ग्राम ऑफ यीस्ट प्रोड्यूसेस 250 टन्स ऑफ प्रोटीन विद इन 24 आवर्स. और जो इससे प्रोड्यूस होता है प्रोटीन विच इज़ 12 टन्स मोर द ड्राई वेट दैट इज़ प्रोड्यूस एज protein per acre per year. This yield of protein is 10 to 15 times higher than the soya beans. So when a single cell protein are produced by using yeast, the products also contain high vitamin content. ठीक है, एक ये इसकी यील्ड बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, हम बहुत थोड़े सबस्ट्रेट में बहुत ज़्यादा अमाउंट ले सकते हैं. इसके अलावा इसके अंदर हम के अंदर सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, बहुत सारे विटामिन का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है. इससे हम बहुत सारी सिंगल सेल प्रोटीन की टेक्नोलॉजी से हम वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज़ करके इन्वायरमेंट को भी क्लीन कर सकते हैं. सो दिस ऑल्सो यूज एज टू कंट्रोल पोल्यूशन. नाउ देयर आर अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट्स इन फ्यूचर, बिकॉज इसके अलावा इसमें विटामिन्स के अलावा बहुत सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स भी हैं. सो अबव ऑल इसको सीज़न अफेक्ट नहीं करता, आप किसी भी सीज़न में इसको ग्रो करवा सकते हैं. देखिए इसके हमारी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं. हम बहुत सारे एनिमल फूड बनाया जा सकता है. जिन्होंने पेट्स रखे हैं उन्हें पता है कि एनिमल फूड अवेलेबल होगा कैन्स में, टिन्स में, ड्यू टू दीज टेक्निक्स विच इज़ सिंगल सेल प्रोटीन. ह्यूमन फूड जो ड्राइड प्रोडक्ट्स हैं,
जिस तरह आजकल आप लोग बहुत पाउडर्ड फॉर्म में, ड्राइड फॉर्म में जो भी फूड अवेलेबल है वो भी सिंगल सेल प्रोटीन की टेक्निक से बनाया गया है। स्पेस फूड बनाने में इसको यूज़ करते हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट को यूटिलाइज़ करने में हम सिंगल सेल प्रोटीन को यूज़ करते हैं। होपफुली you get all the content about genetic engineering. Thank you so much. Do learn what you have studied in this lecture. Thank you so much. See you in the next lecture.